nice initiative which AMU has taken to actually conduct a webinar on this issue. What was happening? We all are concerned about the environment. We now and then talk about the environment, but we actually forget to do anything about the environment. But this time, actually, the the environment itself has done a lot for himself or herself, whatever gender we can give it. It is our concern. So uh, it is a time of COVID-19 and everybody is locked down, and it is a kind of healing time for the environment. We can say that environment is in the right now in the healing mode. The earth is actually healing itself because all the human activities are minimum, or at few of the avenues the activities are stopped. So blessing in disguise has happened, and because of the stopping of all those activities, this particular time of 1 or 2 or 3 months, and we hope that this time actually uh, goes away and we come to the normal mode. But still, whenever we are in this normal phase, then also we have to remember this particular time, because we don't want to actually repeat these times, because whenever something is to the most extent, then what happens, some sort of collapse is done, and then this healing effect comes. So what happened, human activities, uh, I will be bilingual so that everybody can connect to me, because whenever I am speaking only in English, it happens that maybe in North India the connection is less. So जब भी हम लोग सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन एक्टिविटीज के ऊपर ध्यान देते हैं, तो माहौल में जो प्रॉब्लम्स हैं उनके ऊपर अपने आप तवज्जो कम हो जाती है. So the point is that what exactly is happening right now is just due to the human activities. Uh, at times we are also talking about that there would be a kind of biological threat. This COVID-19 can be a bio weapon, but it is yet to be actually confirmed. So we can't say this with a perfect tone. But the point is that human activities have increased a lot. That हम लोग ये सोच ही नहीं रहे हैं कि जो हमारा environment है उसके ऊपर उसका क्या असर पड़ रहा है. नदियां गंदी होती चली जा रही हैं, ओशंस जो हैं उनमें एसिडिफिकेशन होता जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, बट हम लोगों का ध्यान उस तरफ जाता नहीं है. तो जो मेरा आज का टॉपिक है, दैट इज एंथ्रोपोजेनिक स्ट्रेसर्स एंड इन्वायरमेंटल स्ट्रेन. सो द पॉइंट इज कि ये जो एंथ्रोपोजेनिक स्ट्रेसर्स हैं, ये जो टॉपिक मुझे दिया गया है, देखने में लग रहा है कि ये बहुत ही ज्यादा शायद कॉम्प्लिकेटेड हो, बट एक्चुअली इट्स सो सिंपल. एंथ्रोपोजेनिक, दिस वर्ड, this term is actually, it refers to all those human activities which are done by us. Human activities, जो भी human activities हम लोग जो हम humans हैं, and whatever activities we do are basically anthropogenic activities. इस टर्म को सबसे पहले जो है वो एलेक्सी पावलोव ने कॉइन किया था. ही वाज अ रशियन पर्सन. उनके हिसाब से जो एक्टिविटीज हमें किसी न किसी तरीके से हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाती हैं, हम उन एक्टिविटीज को कह सकते हैं कि वो स्ट्रेसर्स हो सकती हैं, स्ट्रेस पैदा कर सकती हैं इन्वायरमेंट के साथ. तो ह्यूमन एक्टिविटीज जो इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाती हैं, दैट कैन बी एंथ्रोपोजेनिक स्ट्रेसर्स. अब उन सारी एक्टिविटीज के बारे में हम इस सेशन में बात करेंगे. बहुत सारी बातें जो प्रीवियस प्रेजेंटर्स थे उन्होंने की है, तो मैं उन चीजों को अपने इस सेशन में रिलेट करने की कोशिश करूंगी. So now you see the slide, you can see that हम लोग जब एंथ्रोपोजेनिक स्ट्रेसर्स की बात शुरू करते हैं, दिस एंथ्रोपोजेनिक वर्ड जो है, इसका इवेंट हुआ था जब हम लोगों ने अर्थ के ऊपर एग्रीकल्चर की शुरुआत की, फार्मिंग की शुरुआत की. और फार्मिंग की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि बहुत पहले जब
जब ह्यूमन पॉपुलेशन कम थी, उस वक्त फार्मिंग की जरूरत नहीं पड़ती थी. What was the scenario at that time? Humans were wanderers. They actually uh, go and search for food, and they were actually going from one place to another and searching for food. तो वो ग्रो नहीं करते थे किसी एक पर्टिकुलर एरिया को खाली करके, जंगलों को काट के अपने खाने के लिए कोई भी खाना जो है वो स्पेशली डेवलप नहीं करते थे, स्पेशली ग्रो नहीं करते थे. वो एनवायरनमेंट को किसी भी तरीके से बदलते नहीं थे, तब्दीली नहीं करते थे. लेकिन क्या हुआ, जैसे जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़नी शुरू हुई, ह्यूमन पॉपुलेशन के बढ़ने के साथ साथ खाने जो फूड सिक्योरिटी की जरूरत है वो सबसे पहले बढ़ी, जिसकी वजह से ह्यूमंस ने अपने आप को डेवलप करना शुरू किया और एग्रीकल्चरल जो एक्टिविटीज थी उनकी शुरुआत हुई. जो सबसे पहला एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी आप कह सकते हैं वो यही एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज हैं. मगर फिर भी जब तक पॉपुलेशन कंट्रोल्ड थी एक हद तक थी, वक्त तक जो फार्मिंग की एक्टिविटीज थी वो थोड़ी बहुत थी. कई बार ऐसा भी होता था कि जंगलों को काटने की जरूरत नहीं पड़ती थी, जो खुली जगहें थी, जो साफ इलाके थे, सिर्फ घास के मैदान थे, वहां पे हम इंसान फार्मिंग कर लिया करते थे. लेकिन जब पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ने लग गई एंड उस टाइम पे फूड की जरूरत इतनी बढ़ गई कि हमें जंगलों को काटने की जरूरत पड़ गई, उस वक्त हमने क्या किया, एनवायरनमेंट के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी, जंगल कटने लग गए और उस जगह पे, जो जगह साफ हुई, उस जगह पे हमने फार्मिंग एक्टिविटीज शुरू की. तो नाउ वो एक बैलेंस वे में अगर होता रहे तो भी काम चल जाता है. लेकिन जब पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और उस केस में बहुत ज्यादा जंगल कटते हैं और फिर हमको जरूरत पड़ती है एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन की. रेवोल्यूशन का मतलब है कि हम हर एक एरिया में, एग्रीकल्चर के हर एक एरिया में एक तरह से बहुत ज्यादा तब्दीली लाएं, उसमें बिल्कुल आसमान जमीन एक कर दें और वहां से जो हम जमीन का एक छोटा सा हिस्सा है उससे बहुत सारा अनाज उगाने की कोशिश करें. अब उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो हम जंगल काट करके जगह बनाएंगे, उसके बाद फिर हम जो पौधे उगाएंगे उनके ऊपर हम बहुत सारी खाद का छिड़काव करेंगे. और जो खाद होगी, क्योंकि ऑर्गेनिक खाद, अभी जैसे कि बात हो रही थी रजिया मैम और सर के साथ, ससाने सर के साथ बात हो रही थी, जो केमिकल खादें हैं, अगर हम और आप उसको यूज करते हैं तो क्या होता है कि थोड़ा सा जल्दी हमें उसका असर मिलता है, जबकि ऑर्गेनिक खाद को यूज करेंगे तो आपको जो उसका असर है वो कम मिलेगा, बहुत जल्दी नहीं मिलेगा. तो इंसान ने क्या करना शुरू किया कि वो केमिकल खाद पे उतर आया. उसके बाद फिर बायोटेक्नोलॉजी आ गई और बायोटेक्नोलॉजी ने ऐसे बीज डेवलप किए जिससे कि बहुत ज्यादा अनाज पैदा होता था. और एक चीज और थी, उन बीजों को हम यूज कर सकते थे एक बार ही. अनाज हमने उगा लिया, खूब सारा अनाज उगा, लेकिन बिकॉज द सीड्स, whatever seeds were actually taken out from the crop, वो सीड्स जो है वो अगली बार के लिए, अगली बार पौधे उगाने के लिए, अनाज उगाने के लिए सस्टेनेबल नहीं होते थे. तो उसकी वजह से उस जो बायोटेक्नोलॉजिकली डेवलप्ड सीड्स थी उनकी वायबिलिटी नहीं थी और वो अगली बार यूज नहीं किए जा सकते थे. तो हमारी डिपेंडेंसी बढ़ती चली गई. सो दीज आर द थिंग्स विच आर रिलेटेड टू एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन. हम थोड़ा सा इसको आगे भी बात करेंगे. बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, मेरा जो ये प्रेजेंटेशन है इसमें बहुत सारी बार आपको ये बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल सुनने को मिलेगा, एंड फ्रॉम अ वेराइटी ऑफ सोर्सेज. दिस फॉसिल फ्यूल इज एक्चुअली यूज्ड फॉर in most of the times whenever we are driving a car or a two-wheeler, or we are actually starting a generator. घर में लाइट चली गई, अभी तो इन्वर्टर चल जाता है, लेकिन अगर आप किसी इंटीरियर इलाके में जाएं तो यू विल सी दैट दे हैव गॉट जनरेटर्स जिससे वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, क्योंकि वहाँ लाइट कम आती है. एंड दैट जनरेटर इज ऑल्सो रन थ्रू डीजल और पेट्रोल. वहां भी हम फॉसिल फ्यूल को बेसिकली यूज कर रहे हैं. हम जब हवाई जहाज उड़ाते हैं, प्लेन्स को उड़ाते हैं या स्पेस क्राफ्ट्स को उड़ाते हैं, इन दैट केस ऑल्सो वी यूज a lot of energy or fuel. That fuel is also a type of fossil fuel. Every fuel, even the coal, is a form of fossil fuel. This burning of fossil fuel has caused us
a lot of, you can say, strain on the environment. Even in the manufacturing sector, to produce energy for any sort of manufacturing activity, we require energy, and for this energy we go and rely on burning the fossil fuel. At times, what we do when there is a shortage of fossil fuel, or the fossil fuel is very much expensive, and we have got the forest area which is nearby, we go and destruct the forest. We cut the trees, and we generate all those logs and wood. We actually burn that wood, and that wood, burning the wood will uh, provide us energy, and that energy is used for manufacturing. So all these activities, you can say, are the are those anthropogenic activities which are to certain extent uh, not very much useful for, in one extent they are useful, because we are actually generating or manufacturing things out of those. But in the long term, these activities, if they are not uh, controlled, they can make a kind of anthropogenic strain or environmental strain, and in the long run all these activities can be very much harmful for us. So अभी अगर मैं आपको जो मेरा अभी का स्क्रीन है उस पे लिखा हुआ है कि what are anthropogenic impacts on the environment, कुछ जो टॉपिक्स हैं उनको मैं डिटेल में यहाँ पे बात करना चाहूंगी। हालांकि कुछ कुछ बातें पहले भी हो गई हैं, स्टिल मेरा जो पर्सपेक्टिव है मैं उसके हिसाब से उन चीजों को रिपीट करना चाहूंगी। जब हमने एंथ्रोपोजेनिक इम्पैक्ट को इस नजरिए से देखना शुरू किया कि क्या वो हार्मफुल भी हो सकता है, तो वहां पे सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो है ओवर पॉपुलेशन का। जब तक पॉपुलेशन कंट्रोल्ड थी तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी, काम चल रहा था आराम से, हम लोग अपने इकोसिस्टम के साथ छेड़छाड़ भी नहीं कर रहे थे, क्योंकि हमारी जो एक्टिविटीज थी वो बैलेंस्ड थी। अगर हम 2 पेड़ काटते थे तो हम 10 पेड़ लगा देते थे, और 2 पेड़ काटने में भी अगर हमने 4 साल में ऐसा किया कि हमने 2-3 पेड़ काटे, तो उस 4 साल में जो हमने 100 पेड़ लगा दिए वो भी थोड़े थोड़े बड़े हो जाते थे, एंड दैट बैलेंस वाज मेंटेन। But what is happening if we go ahead and do over consumption? Over consumption का मतलब ये है कि हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर लें, इस्तेमाल का जो रेट है वो बहुत बढ़ जाए, और रीजेनरेशन का जो रेट है वो कम रहे। इन दैट केस व्हाट विल हैपन, देयर विल बी एन इम्बैलेंस। ये इम्बैलेंस जो है हमें आगे चल करके नुकसान पहुंचाएगा। व्हाई? क्योंकि हमें अपनी अर्थ को रीजेनरेट करते रहने देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो सब कुछ हमने अभी यूज कर लिया, हमने आगे के लिए, फ्यूचर के लिए कुछ सोचा ही नहीं। ये वाली जो सिचुएशन है ये नहीं आनी चाहिए, ये नहीं आनी चाहिए, लेकिन ये आ चुकी है, और इस हद तक आ चुकी है कि एक अलार्मिंग सिचुएशन हो गई है। This alarming situation is to be avoided. So this human overpopulation is such an alarming is in such an alarming state कि उसके ऊपर बात करने की बहुत ज्यादा जरूरत हो गई है। अभी इस वाली स्लाइड से मैं थोड़ा सा आगे, इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो मैं बहुत डिटेल में स्टडी आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। इसकी जो पहला वाला पॉइंट है उसको मैंने थोड़ा सा यहाँ पे इलेबोरेट किया है, ह्यूमन ओवर पॉपुलेशन। जब हम ह्यूमन ओवर पॉपुलेशन की बात करते हैं तो माल्थस का नाम जो है वो आ जाता है जुबान पे सबसे पहले। कई बार इनको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज भी किया गया है, लेकिन क्रिटिसिज्म तो ठीक है, अपनी जगह है, लेकिन कुछ चीजें इनकी सही भी है, और कुछ चीजें इनकी कही हुई जो थी उनको हम सच भी मान सकते हैं, क्योंकि हम सब कुछ सारे इम्पैक्ट्स को देख रहे हैं होते हुए। So यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। अकॉर्डिंग टू माल्थस, a growing population exerts pressure on agricultural land, causing environmental degradation and forcing the cultivation of land of higher as well as poorer quality. This environmental degradation ultimately reduces agricultural yields and food availability, famines and diseases and death, thereby reducing the rate of population growth. So इन्होंने जो बात कही थी, इनकी बात को बहुत ज्यादा एक्सट्रीम माना गया, और इनको ये कहा गया कि इनको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया।
बट इनकी बात बहुत हद तक सही है। हम अगर किसी भी चीज के ऊपर इतना प्रेशर डालेंगे कि वो जो प्रेशर है उस प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पाए, तो वो अक्सर टूट जाएगी। जैसे कि अगर आप एक रबर बैंड है और उसको बहुत ज्यादा खींचते हैं, तो रबर बैंड जो है उसका एक लेवल होता है कि वो उस प्रेशर को बर्दाश्त कर सकता है। जब वो प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पाता है तो वो टूट जाता है। इन द सेम वे, whenever the population growth, agricultural land use, then environmental degradation, ये सारी जो चीजें हैं ये इतनी बढ़ जाएंगी कि environment उसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो there will be a kind of you can say relapse, and in that case that particular relapse will cause famines, diseases, drought, फ्लड, जो एक्टिविटीज की बात अभी हम लोगों ने पीछे की थी, वो सारी चीजें होने लग जाएंगी, एंड दैट विल कॉज डेथ, डिजीज एंड ऑल दोज थिंग्स। जिससे कि क्या होगा, अपने आप रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ कम हो जाएगा, अपने आप अर्थ जो है वो पॉपुलेशन को बैलेंस कर देगी। सो दिस इज समथिंग विच इज टोल्ड बाय माल्थस, and which is like you can see in this COVID-19 situation, we are seeing that lots and lots of different things are happening. Even we are experiencing that locust arrival, which is actually uh, very rarely seen in India. And we are seeing lots and lots of tremors, like you can see that earthquake, बहुत ज्यादा हल्के हल्के से tremors हैं, लेकिन हल्का हल्का सा जो earthquake का असर है वो हमें बार बार दिख रहा है। इसके अलावा बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने लग गई है, so that increased temperature in the month of May, we have seen in news that there were the captions in news that today is the is the warmest day in 10 years or 12 years or 20 years. So this particular kind of event, whenever it happens, it shows, it reflects that there is something which is disturbing, and now this disturbance is being checked by the environment itself. So all these things are due to the overpopulation, because of the over exploitation. And if you can see that there is a graph on the screen which is showing that how the population has got an exponential growth during the we see in 10,000 BC, from starting from the 10,000 BC to the year 2000. And if you can see uh, in the like recent past, the exponential growth of human population has been observed. So this is particularly something which is to be checked. अगर ह्यूमन ओवर पॉपुलेशन होगा तो डिमांड बढ़ेगी चीजों की, फूड की, हर तरह रिहाइश के लिए जो जरूरियात है उनकी जो डिमांड है वो बढ़ेगी, और उन डिमांड्स को पूरा करने के लिए we will go and do this type of activity which can be termed as human overconsumption. ह्यूमन ओवर कंजम्पशन क्या है और हम इसको क्यों इतना इम्पोर्टेंट मानते हैं, और इससे रिलेटेड कुछ और टर्म्स हैं मैं जिसके बारे में बात करना चाहूंगी। सो बेसिकली ह्यूमन ओवर कंजम्पशन और ओवर कंजम्पशन in general is a situation where resource use has outpaced and sustainable capacity of the जो भी एक सस्टेनेबल कैपेसिटी है इकोसिस्टम की, उसमें जो रिसोर्सेस का जो यूज है वो बहुत हद तक बढ़ गया है, इतना बढ़ गया है कि उसकी वजह से जो ओवर कंजम्पशन है उसकी वजह से जो अर्थ है वो रीजेनरेट प्रॉपरली नहीं कर पा रही। So basically, overconsumption is a situation where resource use has outpaced the sustainable capacity of the ecosystem. और अगर हमें इसे मेजर करना है, अगर हम ये जानना चाहते हैं कि क्या ओवर कंजम्पशन हो रहा है या नहीं, उसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक प्रोसेस है जिसके थ्रू इसे मेजर करते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड एज इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट एक मेजरमेंट का तरीका है जिससे कि हम ये जान सकते हैं कि जो रिसोर्स अकाउंटिंग है, जो रिसोर्सेज हैं, क्या वो ओवर कंजम्पशन उनका हो रहा है या नहीं। रिसोर्सेज जो हैं
क्या उनको इतना ज्यादा यूज किया जा रहा है कि जो रीजनरेशन है वो उसको पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो कर पा रहा? क्या ऐसा तो नहीं है कि हम जितने रिसोर्सेस को यूज कर ले रहे हैं, अर्थ जो है वो अपनी उस पूरी डिमांड को पूरा नहीं कर पा रही है, एंड ऑल्सो दिस कंजम्पशन इज मोर देन द रीजनरेशन. सो अगर हम अभी फिलहाल जो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है उसको देखें, तो दैट एस्टिमेट्स बेसिकली 70% हायर देन दी करंट डिमांड. मतलब जो अभी फिलहाल डिमांड है रिसोर्सेज की, हम उससे कहीं ज्यादा यूज कर रहे हैं. तकरीबन 70% हम ज्यादा यूज कर ले रहे हैं. 70% ज्यादा यूज कर ले रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हमारी जो अर्थ है वो बेसिकली 70% लेस रीजनरेट कर पा रही है उन रिसोर्सेज को. सो द पॉइंट इज कि अगर ये पैटर्न बहुत दिन तक चला, a prolonged pattern of overconsumption leads to environmental degradation and the eventual loss of resource bases. So अगर ये बहुत दिन तक चला तो क्या होगा कि हमने जितने भी रिसोर्सेज मौजूद थे उनको सबको इस्तेमाल कर लिया, यूज कर लिया, और नतीजा ये होगा कि आगे चल करके हमें उन जरूरत की चीजों की कमी हो जाएगी. क्यों? क्योंकि रीजनरेशन तो हो ही नहीं पाया. सो ये चीज को हमें जरूर ध्यान में रखना पड़ता है कि अगर हम कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको हमें फ्यूचर के लिए छोड़ना भी है, या फिर हमें इतना टाइम देना है कि अर्थ उसको रीजनरेट कर पाए. तो हम किसी भी चीज को यूज करें जब, तो ये जरूर ध्यान रखें कि वो आगे चल करके आने वाली जनरेशन के लिए भी बाकी बचे. सो अगर हम इस चीज को अब ध्यान में रखते हैं तो बेसिकली व्हाट विल हैपन, हमको ये देखना होगा कि हमारा कार्बन फुटप्रिंट कितना है. अब नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज अ कार्बन फुटप्रिंट. व्हाट इज नोन एज अ कार्बन फुटप्रिंट? बेसिकली हर एक चीज जो हम यूज करते हैं, हम हम पेपर यूज करते हैं, हम खाना खाते हैं, कपड़े पहनते हैं, हम जो है वो ट्रैवल करते हैं. एवरी सिंगल एक्टिविटी विच अ ह्यूमन बीइंग डज, actually some sort of carbon emission is actually done whenever we do any activity. Even generation of food, plants उगा रहे हैं, at that particular time we do farming, or we do animal husbandry, we actually cultivate crops, we rear cattle for our meat, for our food. At every with every single activity we do some sort of carbon emission, or we actually leave a carbon footprint. If we want to discuss this carbon footprint, there is a very simple definition of a carbon footprint, that whenever uh, human beings make an affluence and use resource utilization, we actually use some sort of energy, and whenever the energy is used, basically some sort of emission is generated. emission होता है जब भी हम कोई भी चीज, कोई फॉसिल फ्यूल को जलाते हैं, या फिर इवन हम सांस लेते हैं, तब भी हम कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, बाहर निकालते हैं. दिस कार्बन डाइऑक्साइड is actually, whenever we do any activity, even we respire, we generate some sort of carbon dioxide. And if we calculate all this carbon which we generate while doing any of the activity, we consume food, we respire, we our body digests the food, uh, we do all the activities, some sort of carbon is actually emitted. This is, if we calculate this overall carbon, this will give us our carbon footprint. So if we go by a definition, a carbon footprint is defined as the total greenhouse gas emissions caused by an individual, any event, or any organization or product, expressed as carbon dioxide equivalent. Here, what do we mean by carbon dioxide equivalent? Any form of carbon. कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, मॉलिक्यूलर कार्बन हो सकती है, या कार्बन जिस भी किसी जो केमिकल कंपाउंड है या किसी भी कंपाउंड के साथ अगर कार्बन का कोई मॉलिक्यूल है, तो वो किसी भी फॉर्म में अगर है,
तो वो अगर emit हो रहा है, that is going to actually contribute in your carbon footprint. So greenhouse gases, which include carbon containing gases like carbon dioxide, methane, uh, which actually methane is actually emitted whenever we are बर्निंग ए फॉसिल फ्यूल. तो जब हम चल रहे हैं, जब हम रास्ते में सफर कर रहे हैं अपनी कार में बैठ करके, उस टाइम भी हम फॉसिल फ्यूल को जला रहे हैं और हम मीथेन को जनरेट कर रहे हैं. सो वी आर लीविंग अ कार्बन फुटप्रिंट. सो these things, whenever we are clearing a land for cultivation of crops, we are at times, what people do for cultivation of crops, they clear the land by burning the tillers. जो पराली होती है उसको जला देते हैं फॉर एक्चुअली मेकिंग दिस प्रोसेस इजियर एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग. लैंड जल्दी से खाली हो जाता है. बट व्हाट विल हैपन, it is going to make an impact on our environment. Why? Because lots and lots of carbon is going to be emitted. So all these activities remain uh, accumulated, and they can be caused basically in the environment. All these activities accumulate, and they can be forming the carbon footprint of that particular person who is doing all these activities. So what is the point? The point is that every human being has to reduce the carbon footprint. अगर हमने अपने कार्बन फुटप्रिंट को बैलेंस नहीं किया या रिड्यूस नहीं किया, सो आवर प्लैनेट इज गोइंग टू हैव एन इम्पैक्ट, और उस इम्पैक्ट की वजह से we are going to face a lot of difficulties in future. So this human overconsumption has to be checked at any cost. Now let us come to this environmental degradation. What is environmental degradation? Whatever we are listening from since morning is having some sort of concern about our environment, how our environment is being degraded. So this deterioration of the environment through depletion of resources such as air, water and soil, the destruction of ecosystems, habitat destruction, extinction of wildlife and pollution. ये जो सारी चीजें हैं, इन सबको अगर हम कंबाइन कर दें तो हम कह सकते हैं कि these things contribute to the environmental degradation. Basically, it is defined as any change or disturbance to the environment perceived to be deleterious or undesirable. So whatever is undesirable to happen in the environment contributes to the environmental degradation. अभी मैंने यहाँ स्क्रीन पे एक इक्वेशन लिखा है, I is equal to PAT. What is this equation? Basically, this equation shows environmental impact. I stands for environmental impact. And you can see that there is P, A, and T. And all these P, A, and T, these three things are actually multiplied. You can see that all these three things can multiply the impact on the environment. So what P exactly stands for? Degradation is caused by the combination of an already very large and increased human population, which is P. So P is human population, then continually increasing economic growth or per capita affluence. That is A. So P is human population, and then A is what? The growing economic per capita affluence. जितनी हमारी capacity होगी, हम जितना बेसिकली हमारी ग्रोथ हो गई, हमारी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ गई, एट दैट स्टेज व्हाट विल हैपन, जो अगला कंपोनेंट है, एंड द एप्लीकेशन ऑफ रिसोर्स डिप्लीशन एंड पॉल्यूटिंग टेक्नोलॉजी टी. सो व्हाट विल हैपन इफ द ह्यूमन पॉपुलेशन इज ग्रोइंग, और पॉपुलेशन की जो कैपेसिटी है, जो अर्निंग कैपेसिटी है और जो स्पेंडिंग कैपेसिटी है, वो भी बढ़ गई. So what will happen? Then the person will go and get all those resources which can be polluting, which can these resources can be contributing to the pollution. Like if a person this person has got earning capacity, that he or she can afford a car.
So what will happen? This person will get a car. Because of this car, now the carbon footprint will increase. Why? Because this person is going to burn the fossil fuel whenever this person is running this car. So in this way we can say that with the increase in the human population and increase in the per capita affluence and increase in the addition of all those polluting technology, the impact on the environment is going to show. तो अगर ये तीनों चीजें बढ़ेंगी तो उसका जो असर है एनवायरनमेंट पे वो तो दिखाई ही देगा. तो एनवायरनमेंट के ऊपर जो इम्पैक्ट आई है वो क्या है? पी और ए एंड टी के का एक मल्टीपल है. पी ए एंड टी को अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो आप उसको हम आई के फॉर्म में देख सकते हैं. तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट अपने आप बढ़ता हुआ दिखाई देगा अगर हम इंक्रीज देखेंगे ह्यूमन पॉपुलेशन में, हम इंक्रीज देखेंगे पर कैपिटा एफ्लुएंस में, और उसकी वजह से हम इंक्रीज देखेंगे रिसोर्स डिप्लीशन एंड पॉल्यूटिंग टेक्नोलॉजी में. सो दिस इज गोइंग टू कॉज लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट जो है वो डिग्रेड होगा और उसके जो असरात हैं, जो उसकी वजह से जो बहुत सारे रिपरकशंस हैं वो हमें फ्यूचर में देखने को मिलेंगे. नाउ लेट अस सी व्हाट इज ओवर एक्सप्लॉयटेशन. ओवर एक्सप्लॉयटेशन की जब भी हम बात करते हैं तो वहां पे ये जो ओवर हार्वेस्टिंग वर्ड है ना, उसकी बात करना जरूरी हो जाता है. व्हाई दिस इज रिक्वायर्ड? whenever we talk about over harvesting or over exploitation, हमको एनिमल स्टॉक या फिशरी या फार्मिंग इन सभी की बात करनी जरूरी हो जाती है. इन सब की बात करनी जरूरी इसलिए हो जाती है कि हम whenever we go and see that there is a situation where we can earn money, we try to earn more. So जहाँ पे जितनी की जरूरत है उससे कहीं ज्यादा हम यूज करने लग जाते हैं. So what exactly is the definition of over exploitation or over harvesting that is written here? So basically over exploitation, also called over harvesting, refers to harvesting a renewable resource to the point of diminishing returns. डिमिनिशिंग रिटर्न्स, व्हाट डज इट मीन? डिमिनिशिंग रिटर्न्स का मतलब ये है कि हमने उसको इतना ज्यादा यूज कर लिया कि वो वापस उस हद तक जितना अभी है वो वापस नहीं आ पाए. इतना यूज कर ले हम कि हमारा जो पर्टिकुलर टाइम फ्रेम है उसमें वो रिप्लेनिश नहीं हो पाए. वो जो हद है दैट इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स. तो हम इतना ज्यादा किसी भी चीज को यूज कर लेते हैं अगर, तो वो चीज हमारी ओवर हार्वेस्टिंग या ओवर एक्सप्लॉयटेशन की कैटेगरी में चली जाती है. Continued over exploitation can lead to the destruction of the resource. It applies to natural resources such as wild medicinal plants, grazing pastures, animals, fish stock, forest and water aquifers, and there are many more. You can make a list of all these things which are actually over harvested or over exploited. इससे बायोडाइवर्सिटी को एक थ्रेट हो जाता है. ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी इज थ्रेटेंड बाय दिस ओवर एक्सप्लॉयटेशन एंड ओवर हार्वेस्टिंग. ओवर एक्सप्लॉयटेशन कैन लीड टू रिसोर्स डिस्ट्रक्शन इंक्लूडिंग एक्सटिंक्शंस. Over exploitation is not an activity limited to humans. It is actually introduced in many herbivores. Like you can see all these activities in herbivores. We actually generate our animal stock for our consumption. हमको खाने की जो फ्लैश है उसके लिए जरूरत होती है, हमें दूध के लिए जरूरत होती है, हमें एनिमल्स की जरूरत मल्टीपल चीजों के लिए होती है, जिससे कि हम एनिमल हस्बेंड्री शुरू करते हैं. एंड दिस रियरिंग ऑफ हर्बीवोर्स, एक्चुअली जब ये जो जानवर हैं, जो कैटल है, इनको हम अपने यहाँ डेवलप कर रहे हैं for our use, they are going to graze all those fields and they are going to destruct the flora and fauna. So not only human beings, these growing cattle which are actually due to human beings only, ये भी हमारा जो ये ओवर एक्सप्लॉयटेशन है या ओवर हार्वेस्टिंग है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है बहुत हद तक. सो दिस ओवर एक्सप्लॉयटेशन इज अगेन टू बी चेक्ड अ लॉट. उसके बाद फिर देखिए जो एंथ्रोपोजेनिक स्ट्रेसर्स में
सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन जिस चीज का है वो है pollution. And we all know that what is pollution, but still I'm just going to make a kind of uh, recap to your memory. So pollution is the introduction of contaminants into the natural environment that cause adverse change. कोई भी ऐसा कंटामिनेशन जो कि बैलेंस, जो इन्वायरमेंटल बैलेंस है, जो कि एयर में हर एक जो गैस है उसका एक पर्टिकुलर, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ ऑल दोस गैसेस, और हर एक का एक अमाउंट है जो डिसाइडेड है, जो कि बैलेंस्ड है. ये जो अमाउंट है, अगर इससे ज्यादा या कम हो जाता है, जो बेसिकली ज्यादा ही होता है, कम तो कम ही केसेस में हमें देखने को मिलता है, तो उस केस में हमारी एयर जो है वो polluted की कैटेगरी में चली जाती है. So pollution can take the form of chemical substances or energy such as noise, heat or light. Pollutants uh, are all those components of pollution which can be either a foreign substance or energies or naturally occurring contaminants. So वो चीजें जिनकी वजह से pollution होता है, generate होता है, those things are called as pollutants. So the point is that हम अपने अपने माहौल में, हम अपने एनवायरनमेंट के किसी भी कंपोनेंट में अगर कुछ कंटामिनेशन कर देते हैं, जो बैलेंस है उससे हट करके हम चलने लग जाते हैं, तो उसकी वजह से जो तब्दीली आती है, दैट इज कॉल्ड एज पोल्यूशन. सो नाउ द पॉइंट इज व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पोल्यूशन. ये भी हम सभी जानते हैं, बट फिर भी एक बार उसको रिकैप कर लेते हैं. सो एयर पोल्यूशन, light pollution. Light pollution is a new thing, but still it is very important to discuss. Then littering, noise pollution, plastic pollution, soil contamination, radioactive contamination, thermal pollution, visual pollution, water pollution. इसके अलावा भी हो सकता है आगे चल करके कोई नया फॉर्म पॉल्यूशन का नजर आ जाए. ये सारे जो फॉर्म्स हैं पॉल्यूशन के, इन सभी को हम बहुत ज्यादा हैजार्डस मानते हैं. ये सभी फॉर्म्स ऑफ पॉल्यूशन किन वजूहात की से होते हैं, इन्हें भी हमें जरूरत, उनको भी हमें बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है, क्योंकि जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि क्या वजह है पॉल्यूशन फैलने की, तब तक हम उन चेंजेस को, उन कंटेमिनेशंस को दूर नहीं कर सकते. नाउ द पॉइंट इज कि इस वक्त हम न्यूज में अक्सर देखते हैं कि एयर का जो क्लैरिटी है, एयर क्लैरिटी है, या फिर जो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर है एयर में, उसका जो लेवल है वो बहुत कम हो गया है, और जिसकी वजह से द एयर इज वेरी लेस पॉल्यूटेड. जब कंप्लीट लॉकडाउन था इंडिया में and even in the world, we were experiencing the most clear and pure air even in Delhi. दिल्ली में जो मंथ ऑफ अक्टूबर है, अगर आप उसमें आते हैं तो आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, बहुत ज्यादा दिक्कत होती है. वाई? बिकॉज द लेवल ऑफ पोल्यूशन इज टू हाई. And even in all those months other than October, because October is a month of festivals, and at times during festivals Indians are very enthusiastic and we go ahead and do a lot of pollution. When we show our happiness, we pollute our environment. This is the human nature which we actually see nowadays. So what happens, uh, our we actually make a kind of attempt activity जिससे कि pollution फैल जाता है. वो pollution अभी बिल्कुल देखने को नहीं मिल रहा है. Why? Because human activities are limited, or at few of the places the activities are stopped. हम लोगों ने सारी कोशिशें कर ली नदियों को साफ करने की, नहीं कर पाए. गंगा एक्शन प्लान एंड ये नदी को साफ करने के लिए प्लान, वो नदी को साफ करने के लिए प्लान, सब कुछ बना, बट कोई भी प्लान सक्सेसफुल नहीं हो पाया. बट जब जैसे ही लॉकडाउन हुआ, आप you can follow all those news that all the rivers are so clear that even you can see your face in that water. If you find an opportunity and you can visit a river nearby, you can see your face in the water. Jitna gandagi, uh, in Delhi we have got Yamuna river, and we have never seen this river so clear jitni ki is waqt hai. And that is just because of the human activities are very much lessened. बहुत कम हो गई हैं human activities. कई जगहों पर तो human activities हो ही नहीं रही हैं. So what does it mean? It means that
the sole cause of all this pollution most of the times is human being. So what exactly the humans have to understand is that whenever we are doing some activities, what is the impact, what is the repercussion, we have to see. So this there is a approach in science teaching, which is called as STS approach, science technology and society approach, जिसका कि मतलब ये है कि whenever we are doing something, some activity or some scientific intervention, we have to think of the society also. Like if we are making a discovery in which we are developing a kind of fuel which is which is able to actually run the car, 1 लीटर पेट्रोल, वो जो फ्यूल है या जो भी हमने बनाया है काइंड ऑफ पेट्रोल, उसमें हम गाड़ी को 100 किलोमीटर चला सकते हैं। हमने ये साइंटिफिक इंटरवेंशन किया। अब नाउ यू कैन थिंक ऑफ दैट दिस साइंटिफिक इंटरवेंशन कैन बी एक्चुअली चेरिश्ड बाय अ लॉट ऑफ पीपल, बट वहीं पे एक फ्लिप साइड इसका ये भी अगर हो कि इसकी वजह से ये जो फ्यूल है, जब इसको इसको हम बर्न करेंगे तो उसकी वजह से 100 किलोमीटर तो गाड़ी दौड़ जाएगी, बट उसकी वजह से जो गैसेस निकलेंगी, जो इमिशन होगा, वो कार्सिनोजेनिक होगा, कैंसर कॉजिंग होगा। इन दैट केस आप मुझे बताइए बाद में जब हम लोग डिस्कशन करेंगे कि क्या हमें इस तरह का फ्यूल डेवलप करना चाहिए, because this fuel is going to cause a lot of emission in the environment which is going to be carcinogenic, and in the area in which we are running the cars using this fuel, the people who are living in the surrounding areas, they are going to get cancer very frequently. So will the people allow us to run the car through this petrol, so through this particular fuel? I think nobody is going to answer in yes. Everybody will say, no, no, we don't want to have this type of development, which is going to give us such a disease. So the point is that we have to think of our environment whenever we are doing development. I'm not against development, but whenever we are doing certain developmental activities, we have to think of that what is going to get, we are going to get as the as the emission or as the impact of this development. With development हमें और क्या क्या मिलने वाला है जो कि contribute करेगा in increasing the pollution level of our environment. So if human beings become concerned about all these things, pollution level कम करना बहुत आसान हो जाएगा। वाटर पोल्यूशन जो है वो तो मिनिमाइज किया जा सकता है, बहुत हद तक मिनिमाइज किया जा सकता है अगर ह्यूमन बीइंग्स के अंदर इतना के जहन में ये बात आ जाए कि हमको जो भी वेस्ट वाटर है, जो भी हम वेस्ट वाटर अपने यूज के बाद नदियों में या वाटर बॉडीज में भेज देते हैं, फोर्सफुली हम उसमें एंटर कराते हैं, उस वाटर को हम किस तरह से प्यूरिफाई करवा सकते हैं, प्यूरिफाई करें। गवर्नमेंट्स को भी इस तरह के एक्शंस लेने चाहिए जिससे कि हम जो हमारी नेचुरल वाटर बॉडीज हैं उन्हें पॉल्यूट ना करें। अब उन्हें अगर हम पॉल्यूट करते हैं तो उसका रिपरकशन क्या होता है, उन वाटर बॉडीज में हम फिश को ग्रो कर रहे हैं, we are actually eating the fish which are actually developed in that water bodies, and there is a process of biological magnification which happens when there is a chemical which is which is engulfed by a animal or any of the fish. Yeah, let's take the example of the fish. So whatever chemical is engulfed, और जो भी उस fish ने अपने अंदर ले लिया, जब उस fish की body में वो जाता है, उस केस में वो केमिकल का जो इम्पैक्ट है वो तकरीबन 10 गुना बढ़ जाता है। अब एक छोटी मछली ने उस फिश ने उस केमिकल को एनगल्फ किया, उस छोटी मछली में उस केमिकल का जो इम्पैक्ट है वो 10% 10 गुना बढ़ गया। जब उस छोटी मछली को एक बड़ी मछली ने खाया तो उसका इम्पैक्ट अगेन 10 गुना बढ़ गया, और उस बड़ी मछली को फिर ह्यूमन बीइंग्स की कंजम्पशन के लिए लाया गया, वो इम्पैक्ट again 10 गुना बढ़ जाएगा। So this exponential growth of the impact of this particular chemical component or pollutant is called as biological magnification.
अब तो DDT को यूज नहीं करते एज ए पेस्टिसाइड, बट लाइक नॉट वेरी फार, बट 10 से 20 साल के अराउंड का जो वक्फा है उसके पहले DDT को बहुत ज्यादा यूज, DDT वाज यूज्ड एज अ पेस्टिसाइड इन आवर क्रॉप फील्ड्स, और वो फिर धीरे धीरे जब क्रॉप फील्ड से जो पानी था वो बह करके वाटर बॉडीज में मिलता था, तो ये जो प्रोसेस थी ये बहुत ज्यादा हो रही थी। और दिस पर्टिकुलर केमिकल कॉम्पोनेंट, it takes a lot of time to actually degrade. ये खत्म होने में सैकड़ों साल लग जाते हैं. So this type of impact of the pollution, you cannot imagine that to what extent it can go. Then if we talk about this new component of light pollution, ये लाइट पोल्यूशन का जो कंपोनेंट है, इसको मुझे भी लगता था पहले कि ये इससे तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप कभी किसी हाई राइज बिल्डिंग में जाएं और वहां से आप नीचे देखें रात के वक्त, जब और उस बिल्डिंग के चारों तरफ जब बहुत सारी लाइट होती है, सभी अपने जो लाइट सोर्सेज हैं उनको ऑन रखते हैं, एंड इफ देयर इज अ aeroplane which is actually passing from this particular vicinity, उस केस में क्या होता है कि कई बार पायलट्स को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है उन प्लेन्स को चलाने में। एंड क्योंकि अगर प्लेन थोड़ा, आपने देखा होगा खास करके जहाँ पे एयरपोर्ट है उसके आसपास के जो इलाके हैं, वहां पे अगर बहुत ज्यादा लाइट है तो उस केस में लैंडिंग के टाइम पे और टेक ऑफ के टाइम पे, दोनों ही टाइम्स पे दिक्कत होगी पायलट को अगर वहां बहुत ज्यादा लाइट हो, क्योंकि जब एक बार प्लेन जो है वो रफ्तार पकड़ लेता है तो वो फिर स्ट्रेटोस्फेयर में चला जाता है, फिर नीचे की लाइट से उसका फर्क नहीं पड़ता, बट लैंडिंग और टेक ऑफ के टाइम ये दिक्कत पैदा करता है। इसके अलावा हमारी आंखों को, नॉर्मल जो ह्यूमन बींग्स हैं उनकी आंखों को भी इतना ज्यादा एक्सपोजर ऑफ लाइट नुकसान पहुंचाता है, हमारी कॉर्निया पे असर डालता है, जिसकी वजह से आप यू कैन सी दैट अर्ली इन दी ओल्डन डेज एक तो चश्मे होते नहीं थे, ये भी आप सोच सकते हैं, लेकिन फिर भी बहुत उतने लोग आपको चश्मों में नहीं दिखते थे जितने अब दिखते हैं, और nowadays people are using contact lenses, तो आप again you can say that in people are less seen in glasses, but आई साइट वीक होना एक बिल्कुल नॉर्मल प्रॉब्लम हो गई है। इचिंग इन दी आईज, ड्राइनेस ऑफ आईज, ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं ये अब ज्यादा हो रही हैं, एंड द air pollution is also one of the causes, and this light pollution. We actually sit in front of the laptops and computers, and artificial light में रहते हैं हम maximum time, जिसकी वजह से dryness of eyes, this is a new component, this is a new phenomenon which is happening nowadays. बिल्कुल आंख सूख जाती है, ऐसा लगता है कि जो हमारी टीयर ग्लैंड्स हैं उनमें कुछ ड्राइनेस हो गई है, आंखें जो है वो बिल्कुल सूखी सूखी सी रहती हैं। दिस इज समथिंग विच इज ड्यू टू दिस exposure of light for a prolonged time, which is one of the repercussions which we are facing due to this light pollution. Then this littering. There is a photograph on the screen at the extreme corner. You can see a garbage dumping ground. Littering सिर्फ garbage dumping grounds में ही नहीं, even in the localities, in densely populated localities you can find a lot of littering. अब आपको ये लग सकता है कि ये तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है लिटरिंग को साफ कर को हटवाना, गार्बेज को हटवाना, बट द पॉइंट इज दैट व्हाई कांट वी डू दिस? इफ वी कैन पुट अ dustbin, a big dustbin in our vicinity, and we can put all those garbage which we produce in that dustbin, and then the government can send a vehicle, and in that particular vehicle the garbage can be taken off. That will be a way in which we can maintain our place much more clean. What happens, those stray cows and buffaloes and all those cattle, whenever they see that there is some food item which is inside the polythene bags, they try to actually eat that food item, or that particular vegetable peel or fruit peel, and in order to actually eat that particular thing which is inside the polythene, जब वो उसे खोल नहीं पाते तो वो उसको पूरा निगल जाते हैं, and you are
you can account a lot of this type of activity even in those cattle which are reared in our विसिनिटी. हम जिनको पाल रहे होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि उन कैटल को, उन भेड़ बकरियों को या उन जानवरों को भी हम कई बार खुला छोड़ते हैं, हम थोड़ा हवा लग जाए इस तरह से हम सोच करके. तो वो भी क्या करते हैं, इस तरह की जो लिटर्ड गार्बेज है उसको कई बार एनगल्फ कर लेते हैं. और जब वो गार्बेज उनके पेट में गया, whatever milk they are going to produce or whatever meat is going to produced by them, that contamination goes inside their body, and with the the process of biological magnification, it is going to come to us, and it is going to impact us. So this type of pollution is also something which is going to impact the human beings a lot, though this has been created by human beings. मगर उसका जो नुकसान है, जो भी चीजें हम कर रहे हैं, जो एंथ्रोपोजेनिक जो स्ट्रेसर्स हम पैदा करते हैं, उनकी वजह से नुकसान भी हमें ही भोगना पड़ता है. सो द पॉइंट इज दैट दिस इज टू बी चेक्ड टू सर्टेन एक्सटेंट कि उसका नुकसान हमें ना उठाना पड़ जाए. There is one point which is known as soil contamination. So there was the discussion where we were talking about that we are using less organic this particular fertilizers. Less organic fertilizers are used because they are costly. Actually costly तो नहीं होते, like that cow dung is not that costly, but basically whenever you are using this cow dung as a fertilizer or as a manure, takes a lot of time to give that much product. जितना कि हम अगर एक केमिकल फर्टिलाइजर यूज करते हैं तो हम जितना अनाज पैदा कर सकते हैं, वो शायद अगर हम सिर्फ काउ डंग को यूज करते हैं एज ए फर्टिलाइजर, तो उसका हाफ ही यूज हम पैदा कर पाए. तो बेसिकली क्या होता है कि किसान ये कोशिश करता है कि उसको ज्यादा से ज्यादा पैदावार मिले, जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा अर्निंग कर सके. सो इन दैट केस they don't go for the organic farming. It's not costly, but it is going to take lots and lots of time to give that much return which the farmer can get if he or she applies this chemical fertilizer. So ये वजह होती है कि ऑर्गेनिक जो खाने की चीजें हैं, ऑर्गेनिक जो अनाज है, वो आपको महंगा मिलता है. बट जो सॉइल कंटामिनेशन है वो नहीं होगा अगर आप ऑर्गेनिक खाद को यूज करते हैं. Why? Because already in the digestive system of this particular animal, जिसका कि वो डंग है, वो जो केमिकल्स हैं उनकी प्रोसेसिंग हो चुकी है. वो अब एक डिकम्पोज्ड फॉर्म, सेमी डिकम्पोज्ड फॉर्म में आपको एज ए मैन्योर मिल रहा है. तो जो केमिकल कंपोनेंट्स हैं वो एब्जॉर्ब कर लिए गए हैं इन दैट बॉडी. जो काउ डंग है या जो भी डंग है जिसको हम एज ए ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज करने वाले हैं, वो अपने आप एक बैलेंस्ड खाद बन चुका है. उसे बैलेंस करने की जरूरत नहीं है आपको अलग से, वो अपने आप एक बैलेंस खाद बन चुका है. उसके अंदर जो केमिकल कंपोनेंट्स हैं वो अपने आप बैलेंस हो चुके हैं. और अब अगर हम उसको एज ए फर्टिलाइजर यूज करेंगे तो वहां पे क्या होगा, क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा केमिकल कुछ है नहीं, तो लीचिंग नहीं होगी. व्हाट इज लीचिंग? Leaching is basically whenever we put in some chemical component as a fertilizer, और उसमें उसके ऊपर हम फिर इरिगेशन करते हैं, यानी पानी का छिड़काव करते हैं, तो थोड़ा सा अमाउंट तो पौधे एब्जॉर्ब कर लेते हैं. लेकिन जो बाकी बचा हुआ है, क्योंकि अब इतना हमने तौल के तो किया नहीं वहां पे छिड़काव, या फिर हमने बहुत ज्यादा तो एक तरह से जो है थोड़ा ज्यादा भी कर देते हैं कई बार किसान, तो एक्सेस ऑफ जो केमिकल कंपोनेंट है वो पानी के साथ लीच करके, उसको लीचिंग कहते हैं, वो नीचे चला जाता है और वो जा करके मिट्टी के अंदर, जो मिट्टी के का नीचे का हिस्सा है, मिट्टी की जो टॉप सॉइल है उसके जस्ट नीचे का जो हिस्सा है, वहां पे अक्यूमुलेट हो जाता है. धीरे धीरे वो अक्यूमुलेशन इतना बढ़ जाता है कि वो टॉक्सिन जो है वो वहां पे डेवलप होने लग जाते हैं, या वो टॉक्सिक की कैटेगरी में चला जाता है. ओवर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑल दीज केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स गो एंड क्रिएट टॉक्सिन्स, जिसकी वजह से क्या होता है कि आगे चल करके 1 या 2 जनरेशन जब हमने क्रॉप्स की वहां से उगा ली, उसके बाद
वो जो सॉइल है वो इतनी टॉक्सिक हो जाती है कि वो बैरन की कैटेगरी में आ जाती है, एंड देन इट कांट बी यूज्ड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स. So this type of soil contamination is again to be checked, क्योंकि हम अपनी अपनी जो soil है, जो फार्म फील्ड है, उसको सस्टेनेबल नहीं रख रहे हैं. हमने तो 2-3 क्रॉप्स उगा ली, लेकिन आगे की जनरेशन उसका उससे क्या करेगी ये हमने सोचा ही नहीं, क्योंकि वो जो सॉइल है वो तो बिल्कुल खराब हो जाएगी, एंड देन इट विल नॉट बी इन ए पोजीशन टू गिव यू more crop. Then there is this thermal pollution. Thermal pollution basically जो हम आजकल बहुत एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं, जिसको कई बार हम लोगों ने अभी पिछले सेशंस में देखा भी, ग्लोबल वार्मिंग की भी बात की गई थी. देन थर्मल पोल्यूशन इज बेसिकली द एक्सेस ऑफ एनर्जी in the form of heat, in the form of thermal energy. What is happening? हम जो भी एनर्जी है, जो भी सनलाइट है, जो सोलर पावर हम इनटेक कर रहे हैं, उसको हम अपने एनवायरनमेंट में एक तरह से रोक लेते हैं, वो बाहर नहीं जा पाता, और वो जो एनर्जी है वो ट्रैप हो जाती है, वो थर्मल एनर्जी ट्रैप हो जाती है, और वो धीरे 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 करके हमारी जो एनवायरनमेंट है उसका टेम्परेचर को राइज करती रहती है, जिसकी वजह से गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कहते हैं, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग से भी जोड़ते हैं. ये जो सारी चीजें हैं, इन सबको हम थर्मल पोल्यूशन के साथ भी जोड़ सकते हैं. अब मैं एक और जो टॉप पॉइंट है डिफॉरेस्टेशन का, उसको भी ले लूं, क्योंकि आई हैव गॉट आई थिंक 10 मिनट्स मोर और क्वेश्चंस भी लेने हैं. सो डिफॉरेस्टेशन इज बेसिकली जो टॉप कवर है, जो हमारे अर्थ का, जिसके ऊपर हम हमारे फॉरेस्ट हैं, उनको मानते हैं, उन टॉप लेयर पे फॉरेस्ट का हक है. बेसिकली वी रिमूव द फॉरेस्ट कवर, एंड उसकी जगह पे हम फार्म लैंड डेवलप करते चले जा रहे हैं. सो दिस डिफॉरेस्टेशन, अगर इस डिफॉरेस्टेशन को हम रिफॉरेस्टेशन के साथ जोड़ करके नहीं देखते, एफॉरेस्टेशन के साथ जोड़ के नहीं देखते, इन दैट केस व्हाट इज गोइंग टू हैपन, द टॉप फॉरेस्ट लेयर इज गोइंग टू डिप्लीट टू सर्टेन एक्सटेंट, कि वो न्यूडेशन हो जाएगा, हमारी जो फॉरेस्ट कवर है वो खत्म हो जाएगा, और जिसकी वजह से अर्थ पे ऑक्सीजन का लेवल बहुत ज्यादा घट जाएगा, और ऑक्सीजन लेवल घटने की वजह से देयर विल बी अ प्रॉब्लम ऑफ respiration and all those activities in which oxygen is required, and most of the activities we require oxygen. डिफॉरेस्टेशन को हम करने का एक बहुत बड़ा रीजन फ्यूल जनरेशन भी है. फ्यूल जनरेशन के लिए, देन बिल्डिंग मटेरियल में हम टिम्बर यूज करते हैं, उसके लिए हम ट्रीज को काटते हैं. तो द पॉइंट इज दैट वी हैव टू सी दैट द फॉरेस्ट शुड नॉट बी कट टू सर्टेन एक्सटेंट कि उनका रीजनरेशन पॉसिबल ना हो पाए, क्योंकि एक फॉरेस्ट को डेवलप होने में, फुल फ्लेजेड फॉरेस्ट बनने में लंबा वक्फा लगता है, और आपने काट दिया और जो प्लांट्स आपने लगाए वो उस पर्टिकुलर 10 साल 20 साल में जाकर के शायद उतना ज्यादा फॉरेस्ट कवर डेवलप कर पाए. तो वी हैव टू सी दैट अगर हम कुछ एक लैंड एरिया को हम क्लियर कर भी रहे हैं, तो उसी टाइम पे वी हैव टू एक्चुअली मेंटेन द फॉरेस्ट, फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द फॉरेस्ट कवर हमको फिर रिफॉरेस्टेशन जरूरी है करना. सो these are the things which we have to take care of, doing all those human activities which we are doing right now. ग्लोबल वार्मिंग के बारे में हम लोगों ने काफी सारी बात की है ऑलरेडी, तो दो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस बिकॉज इट इज रिलेटेड टू द क्लाइमेट चेंज. क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हो रहा है कि हम आजकल एक्सपीरियंस करते हैं कि ठंड के मौसम में जो ठंड का एक्चुअल मौसम पहले हुआ करता था, अब वो मौसम धीरे धीरे खिसकता जा रहा है. यू आर एक्सपीरियंसिंग इन द मंथ ऑफ मार्च ऑल्सो, at times nowadays we are feeling cold, and in the month of November, in the month of September, October हमें ठंडी नहीं लगती. तो this is something which is a climate change which is happening due to global warming. Then the oceans are actually rising. Ocean rise करने की वजह क्या है? Because icebergs, जो बड़े बड़े
आइसबर्ग्स हैं, बिकॉज ऑफ द राइजिंग टेम्परेचर ऑफ द अर्थ दे आर मेल्टिंग। उनके मेल्ट करने की वजह से ओशन का जो लेवल है, वाटर लेवल है, वो बढ़ते जा रहा है, जिसकी वजह से व्हाट इज हैपनिंग, the islands different, you must have heard the news that most of the islands, like there are hundreds of islands in the Andaman region which are now actually under the sea. Why? Because of the growing sea level. So all these things are happening due to global warming. So we have to see that what exactly is the thing which we are doing, due to which the global warming is happening. Greenhouse gases का emission हमें बहुत हद तक कम करना होगा. Then only we can maintain the global warming. Uh, Now I'm going to come to this, what we can do. What we can do as a teacher, as a student, as a parent, as an administrator, as a policy maker, or as a citizen to make our environment healthy, strain free, stress free. Whenever we are feeling stressed, even we try to do something to do all those efforts जिससे कि हमारा stress चले जाए. तो हमें क्या करना चाहिए इन ऑर्डर टू मेक आवर एनवायरनमेंट स्ट्रेस फ्री? इसके ऊपर अभी मैं बात करूंगी आपसे, आपके क्वेश्चंस भी लूंगी. ये जो सजेशंस हैं ये बहुत ज़रूरी हैं कि हम हर किसी के ज़हन में आए, और जब ज़हन में आएगा तो शायद हम अपने एक्शंस में भी उनको सामने लेकर के आ पाए. मैंने यहाँ पे एक, दिस इज समथिंग which is not created by me, it is done by, it is a data which is taken from the internet, but it appealed to me, इसलिए मैंने इसको अपने प्रेजेंटेशन में रखा है कि हम क्या कर सकते हैं जिससे कि हमारा कार्बन फुटप्रिंट कम हो जाए. अगर हम उसे नीचे से देखना शुरू करें तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं. हम अपग्रेड कर सकते हैं लाइट बल्ब्स को CFL से, और आजकल तो और भी अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई है जो कि एनर्जी कम कंज्यूम करती है और लाइट ज्यादा पैदा करती है. उस केस में हम एनर्जी को हम बचा सकेंगे. देन हम जो है वो ड्रायर्स कम यूज करें, हैंड ड्राई क्लॉथ्स यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब बिना हम वॉशिंग मशीन के ड्रायर को यूज करें, वी कैन जस्ट लाइक ड्राई आवर क्लोथ्स इन द सन, जिससे कि एनर्जी हम बचा सकेंगे. रिसाइकलिंग हम कर सकते हैं. देन वी कैन, like the thing which is written here, it is very trivial but actually we can do this: wash clothes in cold water. बिना हम गीजर यूज किए अगर हम अपने कपड़ों को धो लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो दिस ऑल्सो वी कैन डू, एंड यू कैन सी दैट द इम्पैक्ट इज ऑल्सो शोन कितना हम कार्बन एमिशन, कार्बन फुटप्रिंट को कम कर सकते हैं अगर हम ये छोटी छोटी एक्टिविटीज कर लें. ईट अ प्लांट बेस्ड डाइट. प्लांट बेस्ड डाइट अगर हम खाते हैं, जिसको हम आजकल वीगन डाइट भी कहते हैं, जिसे पकाया नहीं जाता, हम सैलेड्स खाते हैं, उस केस में भी हम बहुत अपना कार्बन फुटप्रिंट कम कर सकते हैं, क्योंकि एनर्जी वहां पे कम यूज होगी. हमने जस्ट एक खीरा लिया और उसे काटा और खा लिया. सो इन दैट केस द कार्बन फुटप्रिंट विल बी लेस. देन यू कैन सी दैट स्विच फ्रॉम इलेक्ट्रिक कार टू कार फ्री. इवन देयर इज अ नोशन की पीपल आर गोइंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक कार्स, बट यहाँ पे ये है कि आप कार फ्री हो जाइए. कार फ्री कैसे हो सकते हैं ये तो थोड़ा सा मुश्किल लगता है आजकल, बट स्टिल वी कैन ट्राई. एट टाइम्स we can go ahead and pool a car, or we can go by a public transport whenever this type of situation of corona is not there, क्योंकि अभी तो ये सोचा भी नहीं जा सकता. देन buy a more efficient car, उससे भी कार्बन फुटप्रिंट काफी कम हो जाएगा. बाई ग्रीन एनर्जी. ग्रीन एनर्जी का मतलब यहाँ पे मुराद है सोलर एनर्जी से, या इस तरह की एनर्जी जिससे लेस एमिशन हो, जिससे लेस जो है पोल्यूशन क्रिएट हो. देन दिस इज समथिंग जो ट्रांसएटलांटिक फ्लाइट, ये सब तो हम नहीं करते. तो ऑल दीज थिंग्स कैन रिड्यूस आवर कार्बन फुटप्रिंट. सो दिस इज समथिंग which I wanted to share. And now the session is open for your queries, and if you want to discuss something with me, I will be so happy. So I'm now stop sharing my